بلیٹن کے باقاعدہ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے دوائیوں کی قلت کی۔ شہر قائد میں بحرانوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ اب کراچی میں دواؤں کی قلت بھی پیدا ہو گئی، کئی ادویات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ تفصیلات ترابیل اشرف کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں نیا بحران سر اٹھانے لگا۔ میڈیسن مارکیٹ میں گردے، کینسر اور دل کے مرض میں استعمال ہونے والی دواؤں کی قلت۔ پیناڈول کا پتا 19 روپے سے بڑھ کر 24 روپے کا ہو گیا۔ بلڈ بیگز کی قیمت 400 سے بڑھ کر 700 روپے ہو گئی۔ کلیکزین انجیکشن کی قیمت 1280 سے بڑھ کر 360 روپے ہو گئی۔ کالپول سیرپ 47 سے بڑھ کر 83 روپے کا ہو گیا۔ پیناڈول سیرپ 83 سے بڑھ کر 100 روپے کا بیچا جانے لگا۔ انسولین 600 روپے سے بڑھ کر 1200 میں فروخت ہونے لگی۔ بلڈ پریشر کی دوا ایزی ڈے 250 سے بڑھ کر 400 میں فروخت ہو رہی ہے۔ فارماسسٹ کا دواؤں کی کمی کے حوالے سے کہنا ہے کہ کمپنیوں کے پاس ادویات کا مٹیریل نہ ہونے سے سپلائی کم ہو رہی ہے۔ کینسر، گردے، دل کے امراض میں استعمال ہونے والی دوا تو فروخت ہی بلیک میں ہو رہی ہے۔ گردے کی ہو گئی، شوگر کی ہو گئی اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی میڈیسنز ہو گئیں۔ ایک تو یہ ساری جو ہیں سب کے پرائز جو ہے انکریز ہو گئے، مطلب 100% بڑھ گئے، سب کے ڈبل ہو گئے۔ اور دوسرا یہ میڈیسن جو ہے وہ آنا بھی جو ہے کافی جو ہے شارٹ ہوئی ہوئی ہیں، آ نہیں رہی ہیں، جس سے پیشنٹ کو پریشانی بھی ہو رہی ہے۔ ایک تو تھا چلیں پرائز انہوں نے انکریز کر دیا، لیکن اب تو جو ہے وہ میڈیسنز بھی جو ہے کوئی بھی نہیں آ رہی، کمپنی دے رہی، جس کی وجہ سے بہت پیشنٹس کو پریشانیاں ہونے لگ گئی ہیں۔ دواؤں کی قلت اور مہنگی ہونے سے جہاں غریب شہری پریشان ہیں تو وہیں میڈیکل اسٹورز مالکان بھی ادویات کی فروخت میں کمی سے ناخوش ہیں۔ کیمرہ مین سجاد کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21۔ چائے کے شوقین افراد کے لیے بری خبر آ گئی۔ پتی کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا۔ کھلی پتی کے ساتھ مختلف کمپنیوں کی برانڈڈ پتی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ چائے کی چسکیاں بھی اب جیب پر بھاری پڑیں گی، کیونکہ پتی بھی مہنگی ہونے کے بعد عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ کھلی پتی 1400 سے بڑھ کر 1700 روپے کلو ہو گئی۔ مختلف کمپنیوں کی 900 گرام پتی 200 روپے سے بڑھ کر 300 روپے تک مہنگی ہو گئی۔ دکانداروں نے قیمتوں میں اضافے کی وجہ ڈالر کو قرار دیا، ساتھ ہی پتی طلب کم ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ ریٹ دن پر دن اوپر ہوتے جا رہے ہیں۔ بیچ میں جو یہ مال ڈالر کا جو مسئلہ آیا تھا، اس کے بعد سے جو ریٹ اوپر ہوئے ہیں تو ابھی دوبارہ بیک اپ پہ آئے نہیں ہیں۔ ڈیمانڈ کم ہوگی نا بھائی، جیسے آپ کی سیلری 30,000 ہے، آپ کا مہینے کا خرچہ ہو گیا 50,000، آپ 20,000 کہاں سے لاؤ گے؟ شہری کہتے ہیں کہ اب چائے پینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ تقریباً 2-3 ٹائم تو تقریباً چائے پیتے ہیں، مگر چائے اتنی مہنگی کر دی ہے ان لوگوں نے، اور اس کے باوجود اس کا وزن بھی کم کر دیا ہے۔ جو پیکنگ والی چائے آ رہی ہے نا، خاص طور سے ان کی بات نہیں کر رہا میں، پیکنگ والی چائے کی بات کر رہا ہوں۔ جو برانڈ ہے انہوں نے پیسے بھی بڑھا دیے اور اس کا ریٹ، اس مطلب وزن بھی کم کر دیا ان لوگوں نے۔ ٹی ایسوسی ایشن نے پورٹ پر کنٹینرز کی کلیئرنس میں تاخیر پر پتی مہنگی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ کیمرہ مین ساجد کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ آٹوموٹیو ٹریڈرز اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن کا ریگولیٹری ڈیوٹی کے خاتمے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر عامر ارائیں کہتے ہیں ریگولیٹری ڈیوٹی کے خاتمے سے استعمال شدہ درآمدی گاڑیوں کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہیں ہوگی۔ ایک سال میں ڈالر 105 روپے مہنگا ہوا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ گاڑیاں اوورسیز پاکستانی بھیج رہے تھے اپنے عزیزوں کو، جو گاڑی کی کاسٹ 45 سے 50 لاکھ روپے کی آ رہی تھی، آج اسی کی گاڑی کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 65 سے 70 لاکھ روپے آ رہی ہے۔ لیکن آج وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے عزیزوں کو اپنی گاڑی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جو کہ آر ڈی کے نفاذ کے وقت بالکل ہی ناممکن ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ آر ڈی کے ہٹ جانے کی وجہ سے امپورٹڈ گاڑیوں کی قیمتوں میں فرق آئے گا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پریکٹیکلی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محکمہ ریلوے میں ملازمین کی کمی کا خمیازہ مسافر بھگتنے لگے۔ کراچی کے ریزرویشن دفاتر میں عملہ کم ہونے سے مسافر گھنٹوں انتظار کی کوفت سے گزر رہے ہیں۔ تفصیلات عادیہ ناز کی رپورٹ میں۔ محکمہ ریلوے مسافروں کو سہولت دینے میں ناکام۔ محکمہ ریلوے کی ناقص کارکردگی نے مسافروں کی مشکلات بڑھا دیں۔ کراچی کینٹ اسٹیشن کے اپر کلاس ریزرویشن آفس کے 5 کاؤنٹرز میں سے صرف 2 کاؤنٹرز پر عملہ موجود ہے۔ اکانومی کلاس کے ریزرویشن دفتر میں 11 کاؤنٹرز میں سے صرف 4 کام کر رہے ہیں۔ 4 میں سے 1 کاؤنٹر بزرگوں اور خواتین کے لیے مخصوص ہے، جبکہ 3 کاؤنٹرز پر مسافروں کی لمبی لائنیں لگی رہتی ہیں۔ مسافر کہتے ہیں عملہ کم ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے، گھنٹوں لائن میں لگے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے عملہ جب کم ہوتا ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عملہ پورا ہو تو ٹائم سے ٹکٹ مل جائے۔ ٹکٹ ہماری جو سے نا ابھی ایمرجنسی تھی تو وہ ایمرجنسی جا نہیں سکتے، اس لیے
कल की करवा रहे हैं। रिजर्वेशन दफातर में अमला कम होने से परेशान मुसाफिरों ने इंतजामिया से अमला बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदियाना, सिटी 21। कोरंगी 12,000 रोड पर वाक़ शहर का सबसे बड़ा खैराती अस्पताल चार्ज पार्किंग माफिया और गलासत के हिसार में आ गया, जिसने मरीजों और तीमारदारों समेत अस्पताल के अमले को भी परेशान कर रखा है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। इंडस अस्पताल के बाहर चार्ज पार्किंग के नाम पर आवाम को दोहरे तरीके से लूटा जा रहा है। चार्ज वसूली के बावजूद घंटों के हिसाब से वसूली हो रही है। ये है कि हम अगर 7 बजे के बाद निकलते हैं तो 7 बजे के बाद रिटर्न आते हैं तो फिर 30 रुपए की पर्ची कटाओ, पहले 30 की फिर दोबारा 30 की, इस तरह हो रहा है। सर ये मेरी बाइक है 125, ये 30 रुपये वसूली की जा रही है और आप अगर 2 से 3 चक्कर लगाते हैं तो 2 से 3 चक्करों के दौरान दोबारा से आपसे 30 रुपये लिए जाते हैं। इंडस अस्पताल से मुत्तसिल सर्विस रोड पर कई माह से पानी बहाया जा रहा है, जिससे गंदगी, गलाजत और मच्छरों की भरमार है, जबकि रात के औकात में ये गंदगी स्ट्रीट क्रिमिनल्स को सहूलत भी फराहम कर रही है। गंदा पानी ये भरा हुआ है, लोग इससे बहुत परेशान है और मोटरसाइकिल है और रात को चोरी, डकैती और मतलब दीगर यहाँ बात काम चलते रहते हैं। मतलब ये दरख्वास्त है कि गरीब आदमी इलाज के लिए आते हैं, परेशान होते हैं, इस मसले को सॉल्व किया जाए। इंडस अस्पताल में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों का मुतालबा है कि अस्पताल के बाहर पार्किंग फ्री की जाए और सफाई सुथराई के लिए फौरी इकदामात उठाए जाएं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गार्डन अलबेला सिग्नल पर कायम पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी नशई अफराद की जद में आ गया। पेडिस्ट्रियन ब्रिज की गायब जालियां इंतजामिया की गफलत की दास्तान सुनाने लगी। शहरियों ने खस्ताहाल पेडिस्ट्रियन ब्रिज को खौफ की अलामत करार दे दिया। पेडिस्ट्रियन ब्रिज की खस्ताहाली के बाइस शहरियों ने इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया। तेज़ रफ्तार ट्रैफिक से सड़क पार करने वाले शहरियों का कहना है कि एक बरस से भी ब्रिज की हालत ख़राब है। अब यहाँ से गुजरते हुए भी खौफ महसूस होता है। नशे के आदी अफराद ने ब्रिज से लोहा काट कर उसका बुरा हाल कर दिया। इस जानिब कोई देखने वाला नहीं। यहाँ होने वाले हादसे की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। मंगोपीर में पानी की मेन लाइन में लीकेज से हजारों गैलन पानी ज़ाया होने लगा। सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से ट्रैफिक की रवानी में भी दुश्वारी का सामना है। पीटीआई रहनुमा अताउल्लाह ने मंगोपीर के मकाम की वीडियो जारी कर दी। कहा, कराची के शहरियों को मिलने वाला पानी ज़ाया हो रहा है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मेन मंगोपीर रोड पे मौजूद हूँ। ये पहले जो आपको पानी दिखाया गया, ये मेन लाइन है जो कि लीक है और इससे पानी ज़ाया हो रहा है। ये पानी कराची के शहरियों को मिल सकता है, ये मेरे हलके के आवाम को मिल सकता है। ये कस्बा पीराबाद, व्यावाली कॉलोनी और फ्रंटियर कॉलोनी, ये पाक कॉलोनी, ये सबको पानी मिल सकता है। लेकिन इस पे वाटर बोर्ड ने और ख़ासकर पीपल्स पार्टी जो कि लोगों के ख़रीदने के लिए काम तो कर रही है, लोगों के फलाह के लिए कोई काम नहीं कर रही है और ये पानी ज़ाया हो रहा है। नाज़रीन, डीएमसी साउथ के मरकजी दफ्तर में पानी की फराहमी कई दिनों से बंद है। पानी न होने के बाइस दफ्तरी मुलाजमीन शदीद परेशान है। ज़िला जनूबी का इंतज़ाम संभालने वाली डीएमसी साउथ का अपना ही निज़ाम निराला निकला। डीएमसी साउथ का मरकजी दफ्तर पानी से महरूम है। नलकों में पानी की जगह हवा आती है, जबकि मोटर भी पानी न होने के बाइस ख़राब हो चुकी है। डीएमसी साउथ के दफ्तरी मुलाजमीन पानी की किल्लत से शदीद परेशान है, जबकि बैतुल खला के इस्तेमाल के लिए भी मस्जिद के बाहर कायम बैतुल खला जाना पड़ता है। मुलाजमीन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ अफशान रुबाब का कई मरतबा शिकायत की हैं, लेकिन उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से दफ्तरी मसाइल हल फिलहाल नहीं हो पा रहे। मुल्क के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को रवां माली साल के 9 माह में अपने ज़राई से आमदनी के मुकाबले में 4.5 अरब रुपए का खसारा जाहिर हो चुका है। इस अरसे में बल्दे उज़्मा ने अपनी आमदनी का हदफ 5 अरब 72 करोड़ 25 लाख रुपए रखा था, लेकिन रेवेन्यू पैदा करने वाले 15 महकमों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर है। अब तक इन डिपार्टमेंट की मजमूई आमदनी सिर्फ 1 अरब 44 करोड़ 90 लाख 3 हज़ार रुपए हो सकी है। हालांकि इस अरसे में उन्हें मजमूई तौर पर 5 अरब 72 करोड़ 25 लाख रुपए वसूली करनी थी। बल्दे उज़्मा की कारकर्दगी 8 दिसंबर 2022 से एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर्रहमान के तकर्रुर के बाद बुरी तरह से ख़राब होना शुरू हुई। उनके दौर में चिड़ियाघर की एक हतमी मुबैना गफलत और लापरवाही के बाइस हलाक हो चुकी, जबकि कोई तरक्याती मंसूबा शुरू भी नहीं हुआ।
कराची चिड़ियाघर के सामने गार्डन हेडक्वार्टर को जाने वाली सड़क पर गटर उबल पड़े, गंदा पानी शाहराह पर जमा हो गया। वासिदा सीवरेज निज़ाम से शहर कायद के बासी अजियत का शिकार हो गए। चिड़ियाघर से मुतसिल गार्डन हेडक्वार्टर को जाने वाली सड़क पर गटर उबलने से शहरी परेशानियों में मुब्तला हो गए। सड़क से गुजरने वाले भी मुतलका हुकाम पर बरस पड़े। शहरी कहते हैं गटर उबलने से गंदा पानी शाहराह पर जमा हो गया। सीवरेज के पानी और खस्ता हाल सड़क की वजह से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। हर कुछ दिन बाद यहाँ पानी मौजूद होता है जिससे नमाजियों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। गुज़श्ता दिनों यहाँ रिक्शा उलट गया था लेकिन हुकाम ने फिलहाल कोई तवज्जो नहीं दी। नाज़रीन, अंदरून मुल्क से कराची आने वाली गाड़ियां आज भी ताख़िर का शिकार हैं। महकमे रेलवे ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर लाने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आज लेट आने वाली गाड़ियों में तेज़गाम 1 घंटा 20 मिनट ताख़िर से आई। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 5 मिनट लेट पहुंची। कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 35 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट ताख़िर का शिकार है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 1 घंटा 37 मिनट लेट है। ट्रेनों की ताख़िर रेलवे निज़ाम के लिए ख़तरा बनने लगी। ज़राए के मुताबिक ताख़िर से आने वाली ट्रेनों को वॉशिंग लाइन में टाइम कम मिलता है जिससे गाड़ियों की चेकिंग दुरुस्त नहीं हो पा रही। सिंध सरकार ने सूबे के 9 महकमों के अफसरान को 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल 3:30 बजे होगा। आपको बता रहे हैं कि सिंध सरकार ने सूबे के 9 महकमों के अफसरान को 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल 3:30 बजे होगा। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबे के 9 महकमों के 19 ग्रेड के अफसरान को अगले 20 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास तलब कर लिया है। इजलास कल 3:30 बजे होगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड, सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन शरीक होंगे। इजलास में 19 ग्रेड के अफसरान को अगले 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी जाएंगी। इनमें जो महकमे हैं जिसमें महकमा स्कूल तालीम, महकमा इत्तलात, महकमा आपाशी, महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड, इसके अलावा महकमा मवेशी माहीगिरी, सेहत, वर्कसन सर्विसेज, कॉलेज तालीम, महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन शामिल है, जिनके 19 ग्रेड के अफसरान को अगले 20 ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी दे दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। बुलेटिन में अब बात करेंगे मरदमशुमारी की। कराची की आबादी 1,81,00,000 तक पहुंच गई है। 7वीं और डिजिटल खाना मरदमशुमारी 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची की आबादी 1,81,00,000 की हद को क्रॉस कर गई। शहर की शरह इजाफा में 12.51%, जबकि सिंध की मजमूई आबादी 15.18% शरह के साथ बढ़ी है। सूबे की आबादी 5,51,72,000 से ज़ायद हो गई। 2 मई को इदारे शुमारियात के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध के तमाम अजला में 74,78,641 रिहायशी और तिजारती ढांचों में 88,13,096 रिहायशी यूनिट शुमार हुए, जिनमें 1,54,782 घरानों की मरदमशुमारी हुई है। सूबाई सिंध के नए माली साल की बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा रही है। सूबे में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे और 1 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों की तजवीज़ शामिल है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबाई सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे और कम से कम उजरत 30,000 रुपये करने की तजवीज़ है। सूबे में गुर्बत के खात्मे की स्कीम और गुर्बत मिटाओ स्कीम के तहत गरीबों को नकद रकम देने पर भी गौर किया जा रहा है। तमाम सरकारी महकमों की बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा रही है। महकमे खजाना ने लिखा है कि सूबे में ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत की नई स्कीमें शुरू करने की तजवीज़ दी गई। सिंध भर के सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने की तजवीज़ भी शामिल है। तमाम महकमों ने अपनी हतमी बजट तजावीज़ महकमे खजाना सिंध को जमा करा दी। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में मंगोपीर थाने की हदूद से मनशियात फरोशी के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम को पेश किया गया। सबूत और शवाहिद ना मिलने की बिना पर मुलजिम की बरियत का फैसला सुना दिया गया। दौरान समाअत मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम फैक्ट्री में काम करने वाला एक दिहाड़ीदार शख्स है जिस पर 3 माह कबल मोटरसाइकिल चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया।
मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद रिश्वत का मुतालबा किया गया और रिश्वत ना देने पर मुलजिम के खिलाफ मनशियात फरोशी का बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने मुलजिम के वकील के तमाम तर दलाइल सुनने के बाद और मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत ना होने पर मुलजिम की बरियत का फैसला सुना दिया। कराची के इलाके लाइंस एरिया खुदादा कॉलोनी में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज बन चुके हैं। लाइंस एरिया के मरकजी शाहराह पर शहरी धरना देकर बैठ गए। आपको बताएं, कराची के इलाके लाइंस एरिया खुदादा कॉलोनी में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शहरी इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं और लाइंस एरिया के मरकजी शाहराह पर शहरी धरना देकर बैठ गए। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद है। नुमान, बताइएगा क्या मुतालबात है इन मुजाहिरीन के? जी हाँ, बिल्कुल ये लाइंस एरिया का इलाका है, मरकजी शाहराह है, जहाँ पर इलाका मकीन पिछले 2 घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इनका मुतालबा ये है कि जो रात के औकात में बिजली की तवील लोड शेडिंग है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब गर्मी के दिनों का आगाज़ हो रहा है, गर्मी शुरू हो रही है, रात में नींद नहीं आती है। आपको बता रहे हैं कि शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। लाइंस एरिया खुदादा कॉलोनी में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। बता रहे हैं आपको कि कराची के इलाके लाइंस एरिया खुदादा कॉलोनी में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज है और लाइंस एरिया की मरकजी शाहराह पर शहरी धरना देकर बैठे हुए हैं। नुमान, बताइएगा, मुतालिबात तो हमने इनके सुन लिए, क्या करें ये बताइएगा। अभी तक इंतज़ामिया में से किसी ने इनसे बातचीत की है, कोई मुज़ाकरात की कोशिश की गई है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर उमैमा के जो सेक्रेटरी हैं वो तो इस वक्त यहाँ पर आए हैं, जो मुजाहिरीन हैं उनसे बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस के अफसरान की जानिब से भी यहाँ पर जो है वहाँ मरतबा यहाँ पर आकर मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, लेकिन जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक के इलेक्ट्रिक हुक्काम नहीं आती है, जब तक वो हमारे मुतालबात नहीं सुन लेते हैं, तब तक हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे, धरना देकर बैठे रहेंगे। जब तक जब तक बिजली की बहाली नहीं की जाती तब तक हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं जो कि मर्दों की शाना बशाना इस वक्त शाहराह पर मौजूद है, ये लाइंस एरिया की। बताइएगा जरा, क्या आप लोगों के मुतालबात हैं और लाइट कितना जाती है रात में? क्या पूरी रात नहीं आती है, कुछ घंटे के लिए जाती है? 2 बजे जाती है, सुबह 9 बजे आती है, नहीं पूरी रात नहीं, पूरा दिन नहीं। कुल 5 घंटे लाइट आती है 24 घंटे के अंदर। बच्चे बीमार, हम खुद बीमार। ठीक है, आप बताइएगा जरा क्या मुतालबात हैं आपके? बेटा, वजह ये है, रमजान गुजरा, पहले गैस नहीं, तेल डाले, तेल में पकोड़े तेल लाए, सही है, पकोड़े नहीं बने, कोई बात नहीं। रमजान में शहरी में उठे, शहरी में पराठा बनाने, अजान हो गई, गैस नहीं, कोई बात नहीं, रमजान गुजर गया, मगर हमने रोजे रखे, पक्के कट्टर मुसलमान है। अब आए ईद के 3 दिन उन्होंने माशाल्लाह लाइट खोली, जब कुछ नहीं हुआ, 3 दिन के बाद जो जिंदगी खराब करी है वो आज तक खराब हो रही है। अब बताए, स्कूल के पेपर है, लाइट नहीं है, ज़बानी पढ़ा के याद करवाया, जो ज़बानी पेपर है वो याद करवाया। उसके बाद सुबह उठे 6 बजे, लाइट नहीं, हमने देखा लाइट नहीं, चलो तो इधर सो जाते, फिर आग लग गई, पेपर लेट हो गया, फिर लेके गए हार के, टीचरों से गुजारिश करी, फिर पेपर शुरू हुए। ठीक है, आप बताएं कि क्या ये मुतालबात हल नहीं होंगे तो क्या आप लोग सड़कों पर ही रहेंगे? जी, सड़कों पे बैठे रहेंगे, हम आगे साफेसल पे जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं हुआ, मुतालबा पूरा नहीं हुआ ना, तो हम आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम भूख हड़ताल कर लेंगे। ठीक है, यकीनी तौर पर ये इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात की मंजूरी नहीं होती है, जब तक हमारे मुतालबात को नहीं माना जाता है कि इलेक्ट्रिक हुक्काम यहाँ पर नहीं आता है, तो तब तक हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और अगर हमारे मुतालबात सुने ना गए तो फिर हम भूख हड़ताल पर भी जाएंगे और साथ साथ जो शाहराह फैसल है, जो इस शहर की सबसे मसरूफ तरीन शाहराह है, उसे भी ब्लॉक कर देंगे। जी, अच्छा नुमान, बताइएगा कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया की जानिब से इन मुजाहिरीन से बात करने की कोशिश की गई है, इनसे मुज़ाकरात की कोशिश की गई है, और अगर आपकी बात हो सकी है तो क्या वजह बताई जा रही है इतनी तवील लोड शेडिंग के हवाले से? लाइट के चक्करों में जॉब छूटी है।
जी हाँ बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक के हुक्काम से जब मैंने राब्ता खुद करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस इलाके के जो वाजिबात हैं वो अदा नहीं किए गए हैं। अलबत्ता जबकि जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ चंद लोगों की गलती पर पूरे इलाके को जो है वो निशाना ना बनाया जाए, पूरे इलाके की बिजली को बंद ना किया जाए। इस वक्त जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के वाजिबात के ड्यूज हैं जिसकी वजह से पूरा लाइंस एरिया बंद है और रात भर बंद रहता है, जबकि दिन में जो है लोड शेडिंग टाइमिंग के हिसाब से की जा रही है, जो कि इस अवाम पर जो है वो जुल्म किया जा रहा है। अवाम का ये कहना है कि इस जुल्म को बंद किया जाए, वरना अगर ये बंद नहीं किया गया तो इससे जो धरने का ये जो धरना जारी है इसका जो दायरा है उसे वसी किया जाएगा। शार फैसल तक ये धरना जाएगा और उसके बाद शार फैसल पर भी जाकर ये लोग बैठ जाएंगे। जी अच्छा नुमान, जैसे कि कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आती है कि बिजली को चोरी किया जाता है, कुंडे डाले जाते हैं, के इलेक्ट्रिक की जानिब से इस तरह का कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि बिजली चोरी की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं, जबकि शहरियों की जानिब से तो ये बताया जा रहा है कि जो वाजिबात हैं वो अदा कर चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर शहरी जो है अपने बिलों के साथ भी आए हुए हैं, जो जिन बिलों को अदा कर दिया गया है उन बिलों के साथ ये शहरी यहाँ पर मौजूद है और इनका ये कहना है कि कोई बिजली चोरी होने की यहाँ से कंप्लेन नहीं है, जबकि इस इलाके में जो कुछ लोग हैं उनके वाजिबात ड्यूज हैं जिसकी वजह से जो है वो इस पूरे इलाके की बिजली को बंद किया गया है। जबकि इसके साथ साथ पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस ने भी यहाँ पर आकर मुज़ाकरात करने की कोशिश की। इसके साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से भी यहाँ पर अफसरान मौजूद थे जिन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन जो मुज़ाहिरीन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, जो मुज़ाहिरीन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस और रेंजर्स के आला अफसरान नहीं चाहिए, जबकि हमें के इलेक्ट्रिक के हुक्काम चाहिए जिनकी जानिब से बिजली को बंद किया गया है। इस इलाके में बारहा मरतबा जो है वो कंप्लेनें भी की गई हैं, तो इन सब चीज़ों के बावजूद के इलेक्ट्रिक हुक्काम की जानिब से यहाँ पर कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है। जबकि इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से बिजली चोरी होने की कोई कंप्लेन नहीं है, वाजिबात का यहाँ पर जो है वो एक कुछ इलाके में वाजिबात अदा ना करने की वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है। जी, लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एहतजाज का जो दायरा कार है मज़ीद वसी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सैयद नुमान गुल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट न्यू टाउन थाने की पुलिस का मुकाबले में शहरी की हलाकत का ये मामला है। पीपल्स पार्टी डॉक्टर राकेश कुमार के नोटिस के बाद पुलिस कार्रवाई में तेज़ी आ चुकी है। एसपी गुलशन जफर छांगा की सरबराही में बनाई गई कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि मुकाबला ये बताया जा रहा है कि मुकाबला जाली निकला है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट न्यू टाउन थाने की पुलिस का मुकाबले में शहरी की हलाकत का ये मामला है। पीपल्स पार्टी डॉक्टर राकेश कुमार के हवाले से बताएं कि उन्होंने इस पर नोटिस दिया और नोटिस के बाद पुलिस की कार्रवाई में तेज़ी देखी गई। एसपी गुलशन जफर छांगा की सरबराही में बनाई गई कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और मुकाबला जाली निकला है। आपको बताएं कि कार्रवाई जो है मुकम्मल हो चुकी है और कार्रवाई के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये मुकाबला जाली है। वाक़या न्यू टाउन थाने गेट के बाहर पेश आया था। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है मुबैना पुलिस मुकाबले में हिंदू शहरी की हलाकत का ये मामला है। मुबैना पुलिस मुकाबले जो है वो जाली निकला है। इंक्वायरी रिपोर्ट इस वक्त सामने आ चुकी है। पीपल्स पार्टी डॉक्टर राकेश कुमार के नोटिस के बाद पुलिस कार्रवाई में तेज़ी आई थी। पीपल्स पार्टी डॉक्टर राकेश कुमार के नोटिस के बाद पुलिस कार्रवाई में तेज़ी। एसपी गुलशन जफर छांगा की सरबराही में बनाई गई कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये वाक़या पेश आया था। इस मुकाबले के बारे में बताया जा रहा है कि ये मुकाबला जो है जाली निकला है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट न्यू टाउन थाने की पुलिस का मुकाबले में शहरी की हलाकत का मामला। पीपल्स पार्टी डॉक्टर राकेश कुमार के नोटिस के बाद पुलिस कार्रवाई में तेज़ी देखी गई और एसपी गुलशन जफर छांगा की सरबराही में बनाई गई कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है और रिपोर्ट के मुताबिक मुकाबला जो है वो जानी निकला है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट न्यू टाउन थाने की हदूद में जो है वो एक पुलिस मुकाबला जो है वो हुआ था मुबैना, जिसके अंदर जो है वो
एक शहरी को डकैत की नाम पर जो है वो कत्ल कर दिया गया था। इस पर जो है वो उनके अहले खाना ने जो है वो एहतजाज किया था, जो कि जिनका हलाक किया था उसका ताल्लुक जो है वो हिंदू बिरादरी से था। जब एहतजाज किया गया न्यू टाउन थाने के बाहर तो उसके ऊपर एक जो है वो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी एसपी गुलशन जफर थांगा की सरबराही में, जिनको उन्होंने जो है वो हेड किया था। इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई है एसपी गुलशन की जानिब से एसएसपी ईस्ट को, तो उसने बताया ये क्या है, इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद जो है वो जो पुलिस वाला जो था, जो तफ्तीशी इंस्पेक्टर था फरमान अली शाह, उसके खिलाफ जो है वो एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख की हिदायत पर जो है वो मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में न्यू टाउन थाने में जो है वो 302 के तहत जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो पुलिस मुकाबला है वो जाली बताया जा रहा है, क्योंकि जो सीसीटीवी पुलिस को मौसूल हुई है उसमें हमारे जराए बता रहे हैं कि जो मुकाबला किया गया है उसमें जो तफ्तीशी इंस्पेक्टर था वो सिविल ड्रेस में जो है वो न्यू टाउन थाने के बाहर जो है वो मौजूद था। और बताया ये जा रहा है कि जो हिंदू बिरादरी के अहले खाना है उनके घर में शादी की तकरीब थी। जो मकतूल कमर था वो 80,000 रुपये और अपनी बहन का आईफोन 3 लेकर जो है वो बाहर की तरफ निकला था डेकोरेशन का सामान खरीदने के लिए अपने साथी के साथ। जब वो वहां से गुजर कर जो है वो अपने घर की तरफ जा रहा था, न्यू टाउन थाने से गुजर रहा था, तो तफ्तीशी इंस्पेक्टर फरमान अली शाह ने जो है वो हाथ से रुकने का इशारा किया। बाइक काफी स्पीड में थी, जब बाइक स्पीड से आगे निकली तो तफ्तीशी अफसर जो सिविल ड्रेस में मौजूद था उससे अपनी जो है वो गाड़ी से असला निकाला और सीधा फायर जो है वो ऑन कर दिया। जैसे फायर ऑन किया, वो जो फायर है पीछे कमर की साइड से जो है वो कमल के ऊपर आकर लगी है और पेट की तरफ से जो है वो आर पार हुई है। बताया ये जा रहा है कि सीसीटीवी अभी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन हमारे जरा ये बता रहे हैं कि ये मामला हुआ था। इस पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन मिनॉरिटी विंग के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राकेश कुमार ने, जो हिंदू बिरादरी को देख रहे हैं, उन्होंने जो है वो सख्त नोटिस लिया था और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर जो है वो खुद इस केस को जो है वो देख रहे थे। पूरा दिन वो एसएसपी ईस्ट के बाद जो है वो मौजूद रहे थे और पूरा दिन वाकया मुकम्मल होने के बाद जो बाकायदा तौर पर जो है वो पुलिस अफसर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 302 के तहत। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि जो 80,000 रुपए जो निकले थे वो भी जो है वो डेकोरेशन का सामान शादी ब्याह में जो होता है उसके लिए लेके जा रहे थे। घर में कोहराम का सामान था। फिलहाल जो है वो एसपी गुलशन और एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख की जानिब से जो है वो उनकी हिदायत पर जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो उनके वालिद की मुद्दईयत में जो है वो दर्ज किया गया है, जो कमल मकतूल है। साथ ही साथ जो है वो जैसे ही सीसीटीवी के तहत उन्होंने इंक्वायरी की तो उसमें देखा जा सकता है कि एक एफआईआर भी जो है वो दिखाई गई थी, जिसके अंदर जो है वो मुद्दई ने ये लिखा था कि पुलिस मुकाबला हुआ है और जो जिनको डकैत जाहिर किया जा रहा था उनकी जानिब से पुलिस को जान से मारने की फायरिंग भी की गई है। लेकिन हमारे जरा ये बता रहे हैं कि जो सीसीटीवी पुलिस को मौसूल हुई है उसके अंदर कोई जवाबी फायरिंग जो है वो उनकी जानिब से नहीं की गई है। सिर्फ ये नजर आ रहा है कि पुलिस जो तफ्तीशी इंस्पेक्टर था उसने जो है वो फरमान अली शाह ने जो है वो अपनी गाड़ी से रास्ता निकाला है और सीधा जो है फायर ऑन किया है। इसके ऊपर डॉक्टर राकेश कुमार ने बरहमी का इजहार किया है, क्योंकि वो सीसीटीवी पुलिस अफसरान की जानिब से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है डॉक्टर राकेश कुमार को दिखाई गई है। तो उन्होंने हमें ये बताया है कि वो सीसीटीवी उन्होंने देखी है और इस तरीके से जो है जो फायर किया गया है वो बिल्कुल कानूनी तौर पर भी जो है वो गलत है। इस तरीके से फायर नहीं किया जा सकता। इसके तहत जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद जो है वो तफ्तीश जो है वो इस हवाले से जो है वो की जा रही है इस केस के ऊपर। और जो अहले खाना है उनके वालिद भी जो है वो एसएसपी ईस्ट ऑफिस में पूरे दिन मौजूद थे। एसपी गुलशन जफर थांगा भी मौजूद थे, एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख खुद भी मौजूद थे और जो डॉक्टर राकेश कुमार है वो भी जो है वो तमाम तर मामला को देख रहे थे, जबकि जो सीपीएलसी के जो अफसरान थे वो भी इस केस के अंदर जो है वो मौजूद थे। एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है 302 दफा के तहत और फिलहाल जो है इस पर मजीद कार्रवाई का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। मुद्दई बताया जा रहा है कि मुद्दई था एफआईआर का मुकाबले का, उसमें ये कहा गया है कि उसका ओप्पो मोबाइल छीना गया था, लेकिन अब इसके अंदर क्या हकीकत है कि मोबाइल मामले की मजीद तहकीकात इस वक्त जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। खबर शामिल करेंगे, कराची में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ है। वज़ीर सेहत सिंध के मुताबिक जद्दा में बतौर ड्राइवर काम करने वाला शख्स अमान से कराची पहुंचा है।
बता रहे हैं कराची में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा केस रिपोर्ट हो चुका है और वज़ीर सेहत सिंध के मुताबिक जद्दा में बतौर ड्राइवर काम करने वाला शख्स ओमान से कराची पहुंचा है। तफसीलात आपको बता रहे हैं, कराची आने वाले शख्स को दाने नमूदार हुए थे और ओमान से कराची आने वाले शख्स को करंतना भी कर दिया गया है। वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से बताया जा रहा है कराची में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा केस इस वक्त सामने आ चुका है। एक और केस रिपोर्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि बतौर ड्राइवर काम करने वाला शख्स ओमान से कराची पहुंचा। वज़ीर सेहत के मुताबिक कराची आने वाले शख्स को दाने नमूदार हो रहे थे और उसके बाद करंतना जो है इस शख्स को कर दिया गया है। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा केस रिपोर्ट हो गया है। जद्दा में बतौर ड्राइवर काम करने वाला शख्स जो है ओमान से कराची पहुंचा है। वज़ीर सेहत सिंध के मुताबिक कराची आने वाले शख्स को 7 दिन से बुखार और पिछले 5 दिन से जो है उसके जिस्म पे दाने नमूदार हो रहे थे, जिसके बाइस यहाँ पर पहुंचा है। और ओमान से कराची आने वाला जो शख्स है उसको फिल वक्त करंतना जो है कर दिया गया है। साथ ही साथ उसके जो है नमूने भी ले लिए गए हैं कि और लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं, उसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि आया उस शख्स में मंकी पॉक्स है भी या नहीं। जी बहुत शुक्रिया राबेल अशरफ। बुलेटिन में अब बात करें आटे के बहरान की, तो सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। गंदम ना मिलने पर मिल्स मालिकान एहतजाजन हड़ताल पर चले गए। आज से मुकम्मल डिलीवरी भी बंद कर दी। कल से मार्केट में आटा नापैद हो जाएगा, मनमानी कीमत वसूल की जाएगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन सदर चौधरी आमिर ने तारीखी फसल के बावजूद गंदम ना मिलने को समझ से बालातर करार दे दिया और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की भी अपील कर दी। ख़वातीन के लिए बुरी खबर है। आलमी मार्केट में सोना $25 महंगा होने पर 1 तोला सोना 1700 रुपये महंगा होकर पहली बार 2,22,700 रुपये की बुलंद सतह कायम की है और 1 तोला चांदी भी 20 रुपये इजाफे से 2,750 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक सोना और चांदी की कीमत की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इसकी वजह आलमी मार्केट में सोना $25 महंगा होकर $215 फी औंस पर पहुंच गया, जिसकी वजह से मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1700 रुपये महंगा होकर पहली बार 2,22,700 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स का टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी पर शदीद तशवीश का इजहार। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा है कि मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत ने बरामदात में बड़ी कमी कर दी। हुकूमत से बरामदी सेक्टर के ट्रैफ रेट और ज़ीरो रेट बहाल करने का भी मुतालबा कर लिया। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत ने बरामदात में एक माह में बड़ी कमी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 के मुकाबले अप्रैल 2023 में टेक्सटाइल की बरामदात में 29% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। टेक्सटाइल की बरामदात अप्रैल 22 के $1,74 करोड़ के मुकाबले अप्रैल 23 में $1,24 करोड़ रह गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल ने टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। एप्टेमा चेयरमैन आसिफ इनाम ने हुकूमत से जीरो रेट की बहाली करने का मुतालबा कर दिया और साथ ही बरामदी सेक्टर के लिए रीजनल ममालिक से मुकाबला करने के लिए टैरिफ रेट बहाल करने की भी अपील कर दी। जब हमें जीरो रेट के टैरिफ मिले और सही टैरिफ मिले और सही सप्लाई मिली तो इंडस्ट्री ने 30% एक्सपेंड किया। अभी तो उसके फ्रूट खाने का टाइम था, हम दरख्त ही काट रहे हैं हम तो यानी 30% जिस इंडस्ट्री को ग्रो हो के इस वक्त 26 अरब की एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, यानी अबाउट 2.2-2.4 बिलियन की हम बात कर रहे होते, हम वापस जो है वो हो गए। चेयरमैन एप्टेमा ने कहा कि बरामदी सेक्टर को रीजनल ममालिक से मुकाबला करने के लिए बिजली का रेट 20 रुपए दिया गया था जो खत्म हो गया है। साथ ही दरामदी LNG पर भी मिलने वाली रियायत भी खत्म कर दी है जिससे लागत बढ़ चुकी है। चाइना की रिटेल सेल आई है अभी 2 दिन पहले, वो 20% रिटेल सेल की ग्रोथ हुई है। अगर ये का साथ बाजारी है तो पता नहीं क्या होगा बूम। तो डिफरेंट इलाकों में अमेरिका वगैरह में थोड़ा रिसेशन है। यूरोप का तो जो रिसेशन है वो तो उनका सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है, उन्होंने खुद ही जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में टेक्सटाइल की बरामदात में 14% कमी के बाद 13 अरब 74 करोड़ डॉलर रह गई, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 15 अरब 95 करोड़ डॉलर थी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। साउथ अफ्रीका ने कराची में नेल्सन मंडेला अंडर 19 टैलेंट हंट क्रिकेट प्रोग्राम के लिए साबिक कप्तान सरफराज
सरफराज अहमद को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। सरफराज अहमद कहते हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम से मुल्क को बासलाहियत क्रिकेटर मिलेंगे। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। नेशनल स्टेडियम कराची में साउथ अफ्रीका हाई एजाजी कौंसिल जनरल माजिद बशीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टैलेंट हंट प्रोग्राम के इनेकाद का ऐलान किया। इनका कहना था कि साबिक कप्तान सरफराज अहमद नेल्सन मंडेला अंडर 19 टैलेंट हंट प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। हाई कमिश्नर ने कहा कि नेल्सन मंडेला एक स्पोर्ट्स लवर शख्सियत के मालिक थे। वो फुटबॉल, क्रिकेट और बॉक्सिंग को पसंद करते थे। कोशिश है साउथ अफ्रीका की फुटबॉल टीम पाकिस्तान का दौरा करे। Every move starts with the first step. Something must happen first, and to be honest with you, we tried and we are still working on the football team coming from South Africa to Pakistan. And well, Nelson Mandela was a fan of all sports, but the closest was boxing. He was a boxer. सरफराज अहमद का कहना था कि रवां माह मई के तीसरे हफ्ते में टैलेंट हंट का इनेकाद किया जाएगा। टैलेंट हंट के जरिए मुंतखब 60 जूनियर क्रिकेटर्स को 4 टीमों में तकसीम किया जाएगा। सबसे पहले ये कि इनका इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। आई थिंक उनके लिए उन्होंने अंडर 19 लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करने जा रहे हैं कि जो पूरे कराची से जो है वो लड़कों के ट्राइल्स लेंगे, उसके बाद उनकी 4 टीमें बनाएंगे और उसके बाद जो एक 15-16 बच्चों का पूल बना के उनको लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका जो है केप टाउन और डरबन में लेके जाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और बच्चों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उससे फ़ायदा उठाएं। और कराची के बच्चों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव से कराची के बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू। फाइनल में मुंतखब 16 खिलाड़ी अगस्त में साउथ अफ्रीका का दौरा करेंगे, जहां उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के साथ मेज़बान मुल्क के क्रिकेटर से भी मुलाकात का मौका मिलेगा। और नाज़रीन, कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की जानिब से 5 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की जानिब से मार्केट एसोसिएशन से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया। इफ्तिताही तकरीब में ताजिरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में टाइटल की फातेह टीम को मिलने वाली ट्रॉफी की रौनुमाई भी की गई। तकरीब में मौजूद KWGA के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि इस इवेंट से मार्केट में मौजूद ताजिरों के दरमियान बाहमी इत्तेहाद पैदा होगा। इस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ यही है कि हम इस पाकिस्तान में जो अभी आप देखें मईशत का हाल या हमारे कारोबारों का हाल है, उसमें बड़ा टेंशन है। छोटे को बड़े को सभी को टेंशन रहता है और जाहिर सी बात है थोड़ा एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। तकरीब में शरीक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ बोले कि टूर्नामेंट में नौजवानों का अहम किरदार है। कोशिश है कि नौजवानों को सपोर्ट करें। इफ्तिताही तकरीब में स्पॉन्सर्स के दरमियान अवार्ड भी तकसीम किए गए। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ तहा मलिक, सिटी 21। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में आलमी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सहाफ़ी इमरान शेरवानी और शोबा उर्दू के साबिक HOD तौसीफ़ अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस के शोबा इब्लाग आमा की जानिब से यौम आज़ादी सहाफ़त की मुनासिबत से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी इमरान शेरवानी, शोबे इब्लाग आमा के साबिक HOD तौसीफ़ अहमद खान, शोबे इब्लाग आमा के असातिज़ा और तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक थे। तौसीफ़ अहमद खान बोले, जमहूरियत के लिए आज़ादी सहाफ़त ज़रूरी है। आज़ादी सहाफ़त से हमेशा जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम होता है और माशरे में इस्तेकाम होता है। अगर हकीकत पे मबनी मैसेज होगा, खबर होगी तो उससे फ़ायदा होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इमरान शेरवानी ने कहा कि नए सहाफ़ियों में सच्चाई को उजागर करने का जज्बा होना चाहिए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि माशरे की जिम्मेदारी है कि सहाफ़ी महफूज रहे ताकि वो अपना काम ईमानदारी से कर सके, ताकि लोगों को सच्चाई मालूम हो सके और लोग एक बेहतर माशरा बना सकें। ये इस माशरे की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेहतरी के लिए सहाफ़ी को काम करने की आज़ादी दें। सेमिनार के अख्ताम पर तलबा ने मेहमानों से सवाल किए, जबकि जामा में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में असनाद तकसीम किए गए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ हमना निसार, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।